Assalamu alaikum, dear class. I hope everybody is safe and sound and connected. Could you please confirm in the chat box that you're able to hear my voice and I'm audible? That will be your attendance as well. If you simply write audible, that will give me a confirmation that you're able to listen to my voice. Okay, Mahad, Iman, and Hadba, Ahmed Jamal, and Arsalan can hear me, which means most of you can hear me. And I can only see 17 people who have joined in, which means 16 even in the online class. We are late. Anyway, I waited for 10 minutes, almost 12 minutes. Now we will have to move forward. We'll start the next topic. Now, this topic is something that you already practice. You have been emailing your fellow students, your HODs, your university, and many other places as well. You know what is an email, you know how to send an email, and this has become a very important part of your learning and communication part. Now you can see that it says email etiquettes, which means email also has certain etiquettes. You have been writing official letters, maybe personal letters, semi letters in your school and college life, and even in university life. Today we'll learn about email etiquette. जिसमें internet etiquette is also added, which with the amalgamation of both is called netiquette, जिसमें networking भी आ जाती है. तो ये एक concept वही है. It's just it has a new name with it. So that's called email etiquette. That is netiquette. Now, what is a netiquette? Now, what do we do? This PowerPoint slide starts with an example which is a little different from the email example. It says that everybody is expected to follow the rules while they are driving. Of course, it is always said कि जब आप driving कर रहे हैं, it is not only mandatory to not hit anybody else. It's equally important to get yourself in such a position or drive in such a manner that you can save yourself as well. ना ही ये दूसरों को मारने से बचाने का खेल है, बल्कि अपने आप को बचाने का भी खेल होता है. तो that's driving for you. Same goes for travel through cyberspace. When you're online, when you're using internet, whenever you're trying to communicate with people through internet or these devices or means, you should have some etiquettes. I can share some experiences with you that students these days really don't care about what and how to write an email to an instructor, HOD, and even university. They would just send us emails without having any subject line or any proper information. And on the other hand, some students cannot write simple messages themselves. They are so dependent on AIs that they get it arranged by the AI, which is good. ठीक है, आपको नहीं लिखना आ रहा है, आप AI से लिखवा रहे हैं. लेकिन even then, there are no salutations, no greetings, no endings, and subject lines are also missing because AI आपको message तो बना देता है, लेकिन even then, students and learners are not able to use it properly. So today, we'll move forward with the same concept. जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट लाइन क्या है, अटेंशन लाइन क्या है, why is it important and where to add it. ठीक है, I'm getting messages that मैम I'm late, I'm joining and all that. तो कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं. Let's wait for another 2 minutes. उसके बाद हम आगे चलते हैं. आई होप अभी तक आपको नेटिकेट का मतलब समझ आ गया है, which means network etiquette. ठीक है, in which you network with people, you're using etiquettes or internet etiquettes. ठीक है, so that's netiquette for you.
Now, these are some points which are helpful to understand the importance of internet etiquettes, email etiquettes. Now, we are always interacting with people, mostly in spoken or written form. Emails are more inclined towards written form of language. Now, of course, there is no immediate feedback involved in email. Yes, people can give you a response very rapidly, but that is not the expectation. When you write an email to somebody, the expectation is that they should get informed, and definitely they should be aware of it. Yesterday, I had a class with the first semester. Two makeup classes were there, and timetable was shared around 8:50 or something. And the room number that was allocated to us was in the new building. Now, because students have a tendency of not paying attention, that उनको होता है कि ठीक है क्लास है चले जाएंगे, so most of them, actually all of them, went to HIT campus, main campus Zabis के वो चले गए, जबकि क्लास उनकी IIT campus में थी. So definitely it's very important that you read the entire message for its entirety. Try to dissect it कि सारे मैसेज आपको, पूरी मैसेज आपको समझ आए. वो ईमेल के थ्रू ही भेजते हैं टाइम टेबल. Although I also posted the screenshot in Google Classroom, sent it to the CRs and GRs as well. Even then, there was miscommunication. So this is something that is very much there in the sense कि कहीं ना कहीं miscommunication हो जाती है, because the reader interpret, read or understand the message on the basis of their own understanding. However, if we talk about formal correspondence, it's still email at many levels. Specifically, Zabis University definitely religiously use emails. I work with other universities as well. I have worked with them. They don't. They have more. They have shifted towards WhatsApp more, calling, नॉट इवन कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस. उस पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन ईमेल्स को कम यूज़ किया जाता है. लेकिन कोई भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हो, हॉलीडे हो, वर्कशॉप हो, या कोई एडवर्टाइजमेंट हो कि कोई नई डिग्री लॉन्च हो रही है, तो उसके लिए अभी भी ईमेल को ही प्रेफर किया जाता है. सो ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू सेंड इट, or what are the etiquettes which are attached to it, or are also very important. Now, these are some of the basics. It's very important to think multiple times before sending an email to a recipient. Now, it depends on the recipient that what will be the appropriate content and language for virtual correspondence. Because once you have sent it, you won't be able to get it back. Yes, I've seen a video in which there is a setting that you can do in your Gmail account, and you can get your email back within seconds or maybe 30 seconds. But beyond that time, once your email is gone, it's gone forever. And that can become a very problematic, we can say, thing. I saw a meme as well. There was a funny video. Let me see if I can find it, because today we are taking it online. So maybe I can attach it and you can understand the importance of प्रॉपर ईमेल, कि हम प्रॉपर ईमेल क्यों लिखें. उसमें एक बच्ची होती है और वो अपने किसी टीचर को ईमेल लिख रही होती है, लेकिन जो चीज वो लिखना चाह रही होती है उसके अलावा वो सब कुछ लिख देती है, तो मीनिंग प्रॉपरली बदल जाता है. पंजाबी में वो बोल रही होती है. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट.
मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। दूसरा काइंडली आप मुझे बता दें जो आपने क्विज रीटेक लेना है 3 जिसमें बच्चों ने ऑडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी थी, उसकी डेडलाइन रात के 10 बजे है ना? जी जी, दैट हैज बीन अपलोडेड, चेक कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और मैम क्वेश्चन जो असाइनमेंट नंबर 3 है, हम्म, हम लोगों ने रिटन पार्ट उसका अपलोड नहीं करना? वो मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली, आज ही कुछ अपलोड कर देंगे। आई वाज ट्राइंग टू फाइनलाइज योर स्कोर्स, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वो हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो आई लेट यू नो। Okay, I'm unable to find that video that I was referring to. That's okay. Once I find it, I'll share it in your Google Classroom. You can definitely watch it later. So I was talking about that once you have sent your email, it's gone forever. And if it has any mistakes, then that will be a problem for you, because then, of course, people are very judgmental, and being unprofessional while sending a professional email is not a good look, right? And then, of course, it's important that you give a response of an email in the similar manner. It should not be too lengthy, or it should not be one worded. It should have equal amount of span that you would use while you're on a phone call. As far as font style and text size is concerned, do not be decorative. Be professional, of course. Don't be so plain and simple, but your font should be professional. Yeah. Now, you must have a question that which font is professional. Basically, you should use not Comic Sans or any of those funny um, fonts that we usually use. You should use Times New Roman. That is an academic फॉन्ट. और ईमेल में भी आपको वही यूज करना चाहिए, कैलिबरी, टोहामा, ऐसे किसी किस्म के फॉन्ट को आपको इग्नोर करना चाहिए. And then, of course, be very careful while using your personal information to incorporate in your um, ईमेल एड्रेस. जस्ट बिकॉज आपको एक रैंडम ईमेल आई है, जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम पता और एड्रेस भेज दें. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्या वो रिक्वायर्ड है कि नहीं. तो यू हैव टू look at that as well. The subject line, attention line, or we can say the hook line, has to be very meaningful and captivating. And by reading it, the you know द रीडर मस्ट अंडरस्टैंड कि ईमेल किस बारे में है. उनको उसको पढ़ते ही समझ आ जानी चाहिए कि वो किस बारे में. जैसे जब आपकी यूनिवर्सिटी टाइम टेबल की हमें ईमेल्स भेजते हैं, तो उस पे लिखा हुआ होता है स्केड्यूल फॉर और ऑनलाइन और ऑन कैंपस स्केड्यूल क्लासेस फॉर एक्सेट्रा डेट. उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि व्हाट इज द मोड ऑफ द क्लास, वो कब स्केड्यूल्ड है, डेट भी लिखी होती है, डे भी लिखा होता है, और स्प्रिंग 2024 भी लिखा होता है. तो दैट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दैट्स meaningful, captivating, and definitely having every piece of information which is required. And definitely your subject line should be appropriate, because it depends on your subject line whether the recipient will open the email or not. Yesterday or maybe few days ago, I received an email from a student जिन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि because they were trying to fabricate a truth by telling me that 21st February was a Saturday, and in his or her understanding there was no class. So I have marked them, um, uh, we can say, absent without being mindful. So I went back, I checked again, and I don't remember taking a class on Saturday. So when I checked the calendar, it was actually Friday. But what I'm trying to highlight is that उनके सब्जेक्ट लाइन में कुछ नहीं लिखा हुआ था. ये मैसेज जरूर लिखा हुआ था जो कि चैट जीपी जनरेटेड था, लेकिन
सब्जेक्ट लाइन नहीं था। वहां पर सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती थी? इनकरेक्ट अटेंडेंस, मिसिंग अटेंडेंस, और कंफ्यूजन अबाउट दिस डेट, कुछ इस तरह से लिखते तो इट कुड हैव बीन इजियर एंड अप्रोप्रिएट फॉर मी टू रीड द मैसेज क्विकली। ठीक है। जब बिना सब्जेक्ट के ईमेल आता है तो मोस्टली मैं तो इग्नोर ही कर देती हूँ। आई डू नॉट ओपन दोज मैसेजेस बिकॉज वो स्कैम भी हो सकते हैं, वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या वो नहीं होते ऑनलाइन हैक्स के लिए। तो बिना सब्जेक्ट लाइन वाली ईमेल को इग्नोर कर देना चाहिए। खैर आप मत करें, आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग ऐसे ही इनका एक दूसरे से वो कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करोगे ना, तो जो बॉसेस होते हैं या आपके कलीग्स होते हैं या आपके क्लाइंट्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोप्रिएटली एटिकेट्स को और मैनर्स को जो ईमेल के हैं उनको इस्तेमाल करें। उसके बाद टोन इज इम्पोर्टेंट। Write in a positive tone. I understand the urge of being very direct and passive aggressive at this point of our life. मैंने देखा है ना, this is my personal observation, कि हम बहुत डायरेक्ट होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई बात धीमी टोन में करें, इनडायरेक्टली करें, which is also acceptable at many levels these days. लेकिन we are still following a certain book, and those books, they tell us to be very positive in your tone. जैसे अभी जब मैंने आपको जिस बच्चे के बारे में बताया या जिस ईमेल के बारे में बताया, उसमें I wanted to respond with this line that you are trying to fabricate truth, but I can still see Friday at my end. Now, using these word choices, fabricate a truth or still see, represents again a sarcastic tone. Not negative entirely, but कहीं ना कहीं sarcasm है, irony है, और कहीं ना कहीं point बनाने की बात है। तो I changed it. मैंने उसको, I think I wrote it this way that you should review, or could you please review the calendar once again, because I can still see, not still word मैंने use नहीं किया, I can or it is only Friday at my end as well. तो पॉजिटिव टोन रखना, न्यूट्रल टोन रखना बहुत important है while corresponding through an email. When, अब देखिए एक एग्जांपल दी हुई है, व्हेन आई कंप्लीट द असाइनमेंट वर्सेस इफ आई कंप्लीट द असाइनमेंट, अवॉइड यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, right, which starts with such affixes un, non, none or x, or end with less. I hope suffixes आपको पता है, prefixes होते हैं और affixes होते हैं। prefixes जो है वो word से पहले आते हैं, जैसे kind is a word और उसके साथ में unkind लगा दूं तो वो नेगेटिव हो जाता है। अब हार्ट इज अ वर्ड, उसके साथ लेस लगा दूं तो जो लेस अफेक्ट्स है वो नेगेटिव है, तो वो हार्टलेस हो जाएगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है इन योर कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड यू शुड यूज प्लीज एंड थैंक यू, ये बहुत कॉमन कर्टियस वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी यूज होते हैं, तो यू शुड यूज दोस। एज फार एज content is concerned, check your grammar and spelling, use proper structure and layout, बी एफिशिएंट, राइट। अब स्ट्रक्चर एंड लेआउट की बात करें तो जीमेल में ऑलरेडी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको अभी आपसे शेयर भी करूंगी। व्हाई एम आई रेफरिंग टू जीमेल? बिकॉज मोस्टली आई हैव सीन दैट वी, मोस्ट ऑफ अस वी आर यूजिंग जीमेल। स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ Zabbis के लिए ऑनलाइन जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू डू इट विद योर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ओनली, जो कि जीमेल के सर्वर पे ही ऑपरेटेबल है, या वो ऑपरेशन उसको उसी पे फंक्शन करता है। तो इसीलिए हम जीमेल की बात करेंगे। देयर आर अदर इंटरफेसेस एज वेल, देयर आर अदर emails available. I think there is Yahoo, there is Hotmail, and then much more, बहुत सारे होंगे which I am not aware of, आपको शायद पता हो। तो हर एक का अपना एक लेआउट होगा। However, you have to be efficient, right? Address all the questions and concerns so that you can avoid any delays, which means आपका मैसेज completely, 7 C's जो है ना जो हमने पढ़े हुए, वो इस पे एप्लीकेबल है। जब आप एक ईमेल लिख रहे हैं तो you should apply the concept of 7 C's on it so that the recipient can get it,
entire information correctly, concretely, with courtesy, with clarity and completeness. Okay? And it's very important to send an email, of course, but it is equally important to read the email that you're about to send. I can assure you, पढ़ने के बाद भी mistakes हो जाती हैं because I have to send a lot of emails on daily basis. तो कहीं ना कहीं mistake हो जाती है. For example, the other day I was in a hurry and I had to give a reply in an email. तो मैंने एक word लिखना था classes because मैं मोबाइल से जल्दी जल्दी लिख के send करना चाह रही थी. तो later on when I went back to our conversation, I found out कि मैंने classes की जगह classed लिखा हुआ है, डबल एस ई डी. तो जल्दी का काम जो है वो शैतान का है. तो इस तरह के हैप हैजर्ड मैनर में जब हम रिस्पॉन्स देते हैं तो गलती हो सकती है और हो जाती है. तो अवॉइड दैट, राइट. ट्राई टू कीप द ईमेल ब्रीफ, वन स्क्रीन लेंथ. ठीक है, जब आप जीमेल को ओपन करें तो एक ही स्क्रीन में हमारा वो मैसेज कंप्लीट हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेंथी ईमेल्स को लोग अवॉइड करते हैं. दे डोंट वांट टू रीड, दे डोंट हैव टाइम टू रीड दैट, राइट. जैसे क्लरिकल ऑफिसेज में जब भी आप कोई काम करवाने जाते हैं, yes they ask for an application, they ask you to send an email to ASO, to a teacher, to program manager or an HOD. सारा कुछ कहा जाता है. लेकिन आपने गौर किया होगा कि इवेंचुअली आपसे यही कहा जाता है कि आप हमें वर्बली बताएं व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द इशू, राइट. सो व्हेन यू आर यूजिंग इट, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये सारी चीजें, सारी बातें माइंड में रखें. Now coming towards attachments, this is not the attachment that you're thinking. एक जो psychological and emotional attachment लोगों से हो जाती है, ये वो वाली attachment नहीं है. This attachment is the enclosed information, documentation, a picture or a PDF or an RTF or maybe a docs file. कोई भी फॉर्मेट में जो फाइल हम भेज सकते हैं ऑनलाइन, उसकी बात हो रही है कि आप अटैचमेंट्स किस तरह से अटैच कर सकते हैं. When you're sending attachments, you have to include the name of the file, of course. आप उसको, जैसे यहाँ पर उन्होंने आपको अटैचमेंट के लिए बताया हुआ है कि आप उसे क्लास प्रोजेक्ट प्रपोजल कर लें. जैसे आप में से बहुत जो अच्छे बच्चे हैं, जब वो अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं तो वो उस फाइल का नाम, अपना नाम रीनेम कर देते हैं और साथ अपना रोल नंबर भी लिख देते हैं. दैट्स वेरी गुड. तो उस तरह से आपको अपने जो फाइल नेम है उसे अप्रोप्रिएटली रीनेम करना चाहिए. And you can use rich text format, that is RTF. This is available in Word, or portable document format, that is PDF, to ensure compatibility. इसके अलावा जो हम यूज करते हैं, डॉक्स यूज करते हैं, DOCX एंड DOX एज वेल. ये दोनों फॉर्मेट्स हम यूज करते हैं. ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज अ नेम? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने शायद पहले भी मेंशन किया हो कभी क्लास में. That your email address must be appropriate. ऐसा ना हो रूप की रानी एंड रात का राजा एंड शहजादा एंड ऑल दैट. ऐसे फजूल ईमेल एड्रेस नहीं होने चाहिए. Now, your email address, the address that you use represents you. It talks about you. So having a email like hotgirl144 and 6, जैसे पापा की परी and all that, that will be a very problematic. आपको recipient seriously नहीं लेगा. So it's important कि आप अपने नाम का, जैसे मेरा नाम सादिया मुनीर है, तो एस मुनीर could be used और मे बी सादिया एम could be used, कुछ ऐसा कि जो अप्रोप्रिएट लगे. ठीक है. सो डेफिनेटली इस तरह से, जैसे आपके ईमेल एड्रेसेस जो बने हुए जेविस ने बनाए होंगे, उसमें आपका रोल नंबर होगा और फिर जो सर्वर होता है जेबिस का डैश एस जेबिस देन education.com, तो वो appropriate है. Now these are some do's and don'ts of an email. Write an appropriate subject line when you're writing an email. Begin with the title, full name of the person. Use proper address. For example, Mr. and Miss है तो properly use करें. कोई professor है, कोई teacher है. आप देखें, अगर एक इंसान प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, दोनों इस्तेमाल किए जाएं. आई यूज टू वर्क इन अ रिसर्च फैसिलिटी. तो उसमें जो प्रोफेसर थी, वो प्रोफेसर भी थी और वो डॉक्टर भी थी. तो मैंने सीधा सीधा, मुझे लगा प्रोफेसर एक बड़ा ओहदा है,
So I took her name by saying Professor Alina Ali. ठीक है, तो she was offended. She emailed it back to me and she told me that it took her many years to become a doctor and a professor altogether, and she would prefer to be called or addressed with both. तो फिर दोबारा मैंने ईमेल लिखी और उसमें लिखा डियर डॉक्टर प्रोफेसर अलीना अली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जाने कि आप जैसे एड्रेस कर रहे हैं उसके प्रॉपर titles and initials क्या हैं. Then write your message in a clear and concise manner. Keep your paragraphs very, very clear and short. And then there are some don'ts of an email जो आपको email में बिल्कुल नहीं करने, that you can see on your screen. Don't write in all caps, यानी सब capital में मत लिखें या सब lower में मत लिखें. That leaves a bad impression. और ऑल कैप्स को पढ़ना भी मुश्किल होता है, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है. डू नॉट यूज एब्रीविएशंस सच एज LOL और OMG और ASAP. इस तरह के एब्रीविएशंस यूज नहीं करने, बिकॉज दीज आर नॉट फॉर्मल एट ऑल. डू नॉट यूज sarcasm and humor. This is an easy way to accidentally insult the reader. Like I told you in an experience कि बड़ा मेरा दिल किया कि मैं बड़ा sarcastically wittily उसको आंसर दूं कि जब आप झूठ बनाना चाह रहे होते हैं तो गलतियां इस तरह की हो जाती हैं. But then I controlled myself and I did not add any sarcasm or humor because reader could be offended. So these are some do's and don'ts of the email. Another don't of a email is don't rely on spelling and grammar checkers. This is an easy way to get embarrassed. Even वो भी mistakes कर सकते हैं, तो फिर भी human intervention is important. Punctuation is important. Properly punctuate करें and always reread before sending your email. Now formal email greetings में हमारे पास जो important points आ जाते हैं. These are dear madam, dear sir, ठीक है, टू whom it may concern, डियर मिस, और ये उनका पूरा नाम. फर्स्ट नेम नहीं लेते, ये मैंने आपको बताया होगा. फर्स्ट नेम्स आर नॉट यूज्ड. Using Miss or Mrs. is also not appropriate because if you don't know whether the next lady is married, recipient is married or unmarried, so it's always recommended to use MS. ठीक है, जो कि ये इंटेल करता है कि यू आर नॉट श्योर whether they are married or unmarried. Now informal greetings होंगी hello, हाय एंड डियर. अब डियर जो है हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में और बुक्स में. लेकिन अगर मैं किसी को लिख रही हूँ ना, फॉर एग्जांपल आई हैव अ कॉलीग हुज नेम इज इमरान अली, और मैं उसे कहूँ डियर इमरान, आई सेंट यू एन ईमेल, यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड. दैट्स वेरी इनफॉर्मल. आई शुड राइट डियर मिस्टर इमरान अली. दैट इज द सेफेस्ट वे, यानी आप उनका फुल नेम लिखें. ठीक है, फर्स्ट नेम भी नहीं, सेकंड भी नहीं, फुल नेम लिखें. अब फॉर्मल एंडिंग आप कैसे करेंगे? आई लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू soon. Do not end with by saying thanking in anticipation, thank you for your time, because that's not an appropriate way of ending your email or letter. जब भी आप end कर रहे हैं, it's very important that you leave it on a note on which the correspondence or communication can still go on. ठीक है, I look forward to hear from you. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing when you are planning to visit our town. Or you can get back to me. I look forward to hear from you on my mobile number or email address. तो इस तरह से आप इसे end कर सकते हैं. Informal क्या है? इस तरह से I'm looking forward to seeing you. Hope to hear फ्रॉम यू सून. ये बहुत कॉमन है और मैंने देखा है कि हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो अवॉइड दीज. ठीक है, फिर आ जाती हैं फॉर्मल क्लोजिंग्स. योर्स फेथफुली, योर फेथफुली नहीं है बेटे, इट्स योर्स फेथफुली और सिंसेरली एंड बेस्ट रिगार्ड्स. ईमेल में मोस्टली लोग रिगार्ड्स ही यूज करते हैं, लेकिन आप ये भी यूज कर सकते हैं. इनफॉर्मल होंगी योर्स, टेक केयर, लव एंड ऑल दैट. ऑफ कोर्स अब मैंने ASO को ईमेल करनी है और मैं एंड पे लिखूं टेक केयर सादिया लिख के कहूँ ओके टेक केयर, और योर्स लिख के कहूँ सादिया मुनीर. दैट इज सो outrageously inappropriate, right? So अब regards जो है वहां पर सेट रहता है.
Then certain ways have been enlisted that how you can make a request or you can ask for information. These are some phrases. इसके अलावा भी बेटे मैं आपसे phrases अभी share करूंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा. Could you please let me know if you can attend, if you're available for a meeting on December, etc. I would appreciate it if you could. अब देखिए, I would appreciate it आना लाजमी है. ये बहुत कॉमन है कि हम इट को ओमिट कर देते हैं, हम सीधा सीधा कहते हैं आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड प्लीज. ठीक है, यहाँ इट आना बेटे लाजमी है. I would appreciate it if you could please send me a brochure, if you could please reply within 2 days, and etc. Please let me know how much the tickets cost. I would also like to know if there are any swimming pools in your area. Could you possibly arrange a meeting with logistics manager? तो ये सारे phrases आप यूज कर सकते हैं जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं. एंड दीज आर सम ऑफ द इनफॉर्मल वेज. ये आपने अवॉइड करने. इनफॉर्मल वो है जो आपने अवॉइड करने हैं, फॉर्मल वो है जो आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं. अगर एग्जाम में सवाल आता है regarding email and 7 C's of communication or clarity or something, तो उसमें लिखा होगा कि सिचुएशन फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, तो उसके मुताबिक बेटे आपने ये लिखना है. I was wondering if you could come and see me sometime next week. That is very vague. ना इसमें क्लैरिटी है, ना इसमें कंसाइजनेस है, और ना ही इसमें वर्ड चॉइसेस करेक्ट है. Wondering is not a word that you would use in a official document. Would you mind coming early to help me clean up this place? ठीक है, ये भी नहीं. ठीक. अगर आपने अपने क्लीनर को बुलाना है, हेल्पर को बुलाना है, सबऑर्डिनेट को बुलाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम अर्ली so that we can finish the work on time. ठीक है. Do you think you could call Sam for me? So ये सारे जो sentences है ये informal है. Then there is an exercise that you can do at your own. ठीक है, मैं आपके लिए स्क्रीन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, आप इसे देखें और बताएं if you understand. ठीक है, और if you have any questions.
सो ओके, आई होप आपने ये कुछ एग्जांपल्स देख लिए, जैसे लास्ट वन, हाय हाउ आर यू, इज इनफॉर्मल. लुक एट द फोर्थ वन, आई कांट हेल्प यू विद दैट cuz इट्स टू हार्ड. ठीक है, इसमें बिकॉज भी इनअप्रोप्रिएट है, इट इज भी जो कॉन्ट्रैक्शन के साथ है इनअप्रोप्रिएट है. तो कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं जिसमें इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड, जो कि अवॉइड करनी चाहिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट यू शुड नो. Now, putting it all together is important. Find and correct the errors in the following emails. For example, ये हमारे पास example है. Hello, Professor Smith. I'm sorry to tell you that I'm sorry to tell you, but I'm sick and will not be able to come to class. See ya Wednesday, Jason. What's wrong with the email? कौन बताना चाहेगा? अभी हमने टोनालिटी की बात की, वर्ड चॉइसेस की बात की, क्लैरिटी की बात की, सारे 7 C's जो हैं इसमें आ जाते हैं. एड्रेस की बात की, प्रोफेसर स्मिथ जो है. सो व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद एन ईमेल, विद दिस ईमेल? कौन बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड open your mic and let me know, or let your classmates know as well. जी महत, बताएं बेटे. मैम एक्चुअली इसमें सबसे पहले तो ये मैसेज कंप्लीट नहीं है, हम्म. और इसके अलावा ये जो मैसेज है इसमें वो कंक्रीटनेस नहीं है, सॉरी कोहेरेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जो लाइंस हैं आपस में मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन को वो नहीं कर रही है, कनेक्ट नहीं है. Okay, anything else? What about address? It says hello Professor Smith, is that correct? नो मैम. Definitely not, because you can't say hello to your professor. यहाँ पर होना चाहिए डियर प्रोफेसर स्मिथ जॉनसन, यानी उनका प्रॉपर नेम होना चाहिए. स्मिथ इज यूजली अ फर्स्ट नेम इन इंग्लिश कंट्रीज. तो जैसे अगर यहाँ सादिया मुनीर कर देते हैं या सादिया कर देते हैं, हेलो प्रोफेसर सादिया, यू कांट टेक माय नेम, राइट? या आपके एएसओ के जो ऑफिसर का नाम है, अब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उनकी डेजिग्नेशन को भी हम जैसे एएसओ लिख देते हैं, हमारे कॉमन है. लेकिन इट्स रिक्वायर्ड एंड रिकमेंडेड कि हम प्रॉपर लिखें. किसको पता है एएसओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? किसको पता है एएसओ की फुल फॉर्म क्या है? मैम और इसमें सब्जेक्ट भी मिसिंग है ना. जी जी, सब्जेक्ट भी मिसिंग है. कौन बताएगा बेटे एएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सफदर, बेटे आप बताएं. दूसरा सेमेस्टर है सफदर. देख लो. रोमान, रोमान कार्य, बेटी आप बताओ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसओ? आपके तो काफी चक्कर भी लगते होंगे, बताएं. अच्छा, यहाँ पे क्लास लगा के चली गई अब. ग्रेट हो गया. किसी को भी नहीं पता बेटे? अच्छा चले, अब जब आप कल यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, आपने जाके देखना है एएसओ के नेम प्लेट के मैम साथ ना. एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एसोसिएशन हो जाएगी ना. ये तो ऑफिसर है. ठीक है, एसोसिएशन तो होता है कि मल्टीपल लोग दे दे कम टुगेदर एंड दे हैव अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी. ठीक है. सुबह जब आप जाओगे ना, अगर आपका वहां जाना हुआ, तो आप देखिएगा उनकी उनके जो नेम लिखे होते हैं ना, एक टेबल पे पड़ा होता है, उस पे लिखा होगा एएसओ स्टैंड्स फॉर व्हाट. एनीवे, माय पॉइंट वाज कि आप उनको भी ऐसे नहीं लिख सकते, हेलो एएसओ मेरी रजिस्ट्रेशन करवा दो. ऐसे नहीं होता, राइट? यू वुड हैव टू एड्रेस देम. आप ऑफिस ऑफ एएसओ लिख सकते हैं, क्योंकि एएसओ एक नहीं है. इन माय अंडरस्टैंडिंग देयर आर मल्टीपल एएसओस. ठीक है. So that is an appropriate way of addressing them. You can simply write, Dear Office of ASO. Same goes for examination. जब मैं एग्जामिनेशन को ईमेल भेजती हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में, तो हर दफा एक नया ईमेल से वो रिस्पॉन्स आता है, लाइक पर्सनल ईमेल से रिस्पॉन्स आता है, विच मीन्स एग्जाम सेक्शन में भी 6 से 7 लोग काम करते हैं. तो आई कैन सिंपली राइट, डियर ऑफिस ऑफ एग्जाम और डियर एग्जामिनेशन ऑफिस, विच मीन्स टू whom it may concern. और जो रेलेवेंट इंसान है इस क्वेरी का, वो खुद ब खुद उसको उसका रिस्पॉन्स दे देगा. तो इस तरह के जो वर्ड चॉइसेस हैं आपको पता होने चाहिए. ठीक है. उसके बाद बेटे इसमें आई एम सॉरी में कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रही है, दैट शुड बी अवॉइडेड. यहाँ प्रॉपर वर्ड्स हैं आई ए एम
am sorry to inform you. Tell नहीं होगा, inform होगा. How do we know कि telling and informing में से कौन सा formal है? Telling is a word that we use when we are speaking. ये speaking form of language के साथ attributed है. Informing is more formal in sense and written form of language के साथ attributed है. So आप लिखेंगे I am sorry to inform you that I will not be able to join class today due to my sickness or due to an illness or due to bad health. एक तरीका ये है, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, due to my deteriorating health I am not able to join your scheduled class and I apologize. Now ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो गया, लेकिन it is expected कि सॉरी की जगह apologize यूज किया जाए, राइट? और अपने पे बात ज्यादा ली जाए, अगले पे यानी मी एटीट्यूड ज्यादा ना हो, यू एटीट्यूड हो. यू एटीट्यूड ये होता है बेटे जिसमें अगला बंदा दे फील अ लिटिल मोर अप्रिशिएटेड और सेंटर्ड, यानी इट्स अबाउट देम एंड नॉट यू. ठीक है? सो आई एम से शुरू करने की बजाय ऐसी कोई बात बतानी हो, हमेशा इंडायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है कि ड्यू टू माई बैड हेल्थ आई वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास today, which is important, and I apologize. I end में आना चाहिए. By starting, I am sorry to tell you that I won't be able to. तो it's all about you. यानी ये I attitude या me attitude इसे कहते हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप अगर सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, तो इसको अवॉइड करना चाहिए. उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि सिया वेंसडे जेसन. अब सिया तो आप अपने प्रोफेसर को नहीं लिखेंगे ना, आप एंडिंग करोगे प्रॉपरली. बेस्ट रिगार्ड्स सादिया मुनीर, रोल नंबर, डिग्री, क्लास, वट एवर इट इज, बिकॉज हो सकता है प्रोफेसर और बहुत सारी जगह पे पढ़ाता हो. तो इस तरह से आप इसे एंडिंग करते हैं. ठीक है? आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया है. पता है आपको, लेकिन ये थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे थे हम. अब ये देखिए, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, डियर सर और मैडम. दिस इज नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट. या तो सर लिखें या तो मैडम लिखें. ये कैसे पता चलेगा? आप सर्च कर सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट का दौर है. इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि किसी की डेजिग्नेशन क्या है. आई एम ए ग्रेटफुल sorry, I'm a graduate from Mississippi State University. I got a degree in business and would now like to use it. Your company looks interesting. Can I come in for an interview? I have a lot of experience from my schooling and extracurriculars. I think I can help the company a lot. Please respond to my email to let me know. But इसमें एक mistake है. ये जो a lot है ये इस तरह से नहीं लिखते, इसमें space होता है, ए के बाद space आता है. ठीक है? ये वर्ड यूज बहुत होता है, यस वाइडली यूज होता है, बट इट डज नॉट स्टिल एग्जिस्ट इन द इंग्लिश डिक्शनरी. इसको करेक्ट आपने कर लेना है. नीचे लिखा हुआ है थैंक्स मैक्स ओट्स. इसको प्रॉपर करने के लिए काफी हद तक ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड है. दूसरा, इसमें जो थैंक्स है दैट्स नॉट अ गुड वे टू एंड योर कॉन्वर्सेशन. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस सिंपली ये लिखा जा सकता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव फ्रॉम यू ऑन माय मोबाइल नंबर, एंड देन यू कैन राइट योर नेम दैट वे. तो इस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है. अब देखिए, ऑफ कोर्स आंसर्स में वेरी. अब उन्होंने एक वो प्रोफेसर स्मिथ वाला जो इनफॉर्मल ईमेल था उसको बेहतर करके हमें दिखाया हुआ. Dear Professor Smith, I am sorry to inform you, but I will not be able to attend class today because I am ill. Would it be possible? This is very important. Would it be possible for you to let me know what I have missed? Thank you for your help, and I will see you soon in class on Wednesday. Sincerely, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब जो थैंक यू वाली लाइन होती है ना बेटे, ये एक स्पेस छोड़ के लिखनी है, और सिंसेरली वाली भी, बिकॉज ये पावर पॉइंट है, इसमें स्पेस की कमी है और एक स्लाइड में दिखाना है, तो यहाँ पर आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने ये स्पेस देना है. तो इस तरह से आप इसको बेहतर कर सकते हैं. फिर अब ये देखिए, ये वही मैक्स वाली ईमेल है, इसको कैसे प्रॉपर किया उसने. डियर हायरिंग मैनेजर, जिसको हम एचआर कहते हैं ना, लोग एचआर लिखते हैं लेकिन मैनेजर इज गुड. मैनेजर का नाम ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, वेबसाइट्स पे होता है. My name is Max. I recently graduated in May from Mississippi State University with a Bachelor of Sciences
in business management and a concentration in marketing. I was recommended to contact you concerning job opportunities from my advisor, Dr. Jane Doe. I believe that I would be an excellent candidate for a job. I have taken many courses to prepare me for a job in marketing. These courses include principles of marketing, marketing research, strategic marketing. Now, this is good. This is how you sell yourself as a product. That I have all of these things. मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है. I have also recently. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी छोड़ दें कि फिर आप उसे compensate ना कर सकें. In one of the interviews, one of my students, they told the interviewer कि उन्हें एक्सेल जो है ना बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आता है, उन्हें हर किस्म के फॉर्मूलाज आते हैं, वो ये कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं. अब इंटरव्यू व्यूअर जो था उसने कहा कि चलो ठीक है, उसने उसको एक्सेल शीट खोल के दी और 2 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन लिख कर दे दी. अब उसने कहा कि बाय अप्लाइंग अ फॉर्मूला इन दोनों इंफॉर्मेशंस को एक कॉलम में आप ना इकट्ठा लिख के बताएं. एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, आई थिंक ऑन, आई डोंट रिमेम्बर द नेम व्हाट इट इज कॉल्ड. उसमें जब आप उसमें वो फॉर्मूला लिखते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन कॉलम ए और बी में है वो सी में कंबाइन होकर आ जाती है. ये पता है मुझे, लेकिन इसे याद रखना इतना इजी नहीं है क्योंकि मेरा डेली बेसिस का काम नहीं है. लेकिन जाकर एक इंटरव्यूअर को ये कहना मुझे सब आता है और मैं सब कर सकती हूँ वुड बी अ प्रॉब्लम. What I say usually, I tell them that I can handle it. Of course, I don't remember all the formulas on my fingertips, but I know how to apply them. If I spend some time on it, I can recall it or experiment with it. So इस तरह की चीजें आपको लिखनी चाहिए. ये ठीक है कि ये मैंने कोर्सेस कर रखे हैं, ये अच्छी बात है. Look at the ending. Through my many marketing classes and internship, I have learned to be a strong team member that values time management and communication. I believe that I can be a valuable. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमेशा लिखनी चाहिए. आई कैन बी अ वैल्यूड एसेट और आई कैन बी अ वैल्यूएबल एसेट टू योर कंपनी. माई फोन नंबर एंड ऑल्टरनेटिव ईमेल आर लिस्टेड बिलो. आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू. सिंसेरली, मैक्स एंड उनका जो ईमेल और नंबर है. फिर अप्रिसिएशन के बारे में, एग्जाम्पल 1, मिस दिस इज डैश, राइट, थैंक्स अगेन फॉर योर. अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं बेटे, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं. ये एग्जाम्पल आप पढ़े, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं.
So I hope you have read the example and you're clear about how to, use netiquettes. अब इसको करेक्शन इन्होंने आपको करके दिए, यहाँ पे टिक पढ़ लीजिएगा। फिर अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में या ईमेल के बारे में है, उसको करेक्ट करके दिखा रहे हैं। एंड देन सर्टेन रेफरेंसेस आर गिवन जहाँ से ये आपको पावर पॉइंट ये बनाई गई है। ठीक है, ये पोस्ट कर दी जाएगी। यू कैन टेक अ लुक एट इट लेटर एज वेल। चलिए अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताती हूँ। Now I will show you some phrases that you can use while writing emails and responding to them, ending them, and whatnot. These are important. For example, certain 20 sentences and phrases for beginning an email have been given. होता है ना, some of us we lack creativity, so this is something that can help you. ठीक है, thank you for your message, email, phone call. I hope you're doing well. अच्छा, ये जो नंबर 2 है ना, यस, ये पाकिस्तान में बहुत वाइडली इस्तेमाल होती है और बहुत सारी बुक्स में भी होती है, बट इट इज रिकमेंडेड इन मेजर बुक्स नॉट टू राइट दिस वे, राइट? जस्ट चेकिंग इन। ठीक है, अब ये जो सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, आप यूज फ्रेसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिर वही एंडिंग वाले हैं जब आप थैंक कर रहे हैं, फ्यूचर फोकस की बात कर रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर रिप्लाई। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो अपलोडेड आपको मिलेगा आपके गूगल क्लासरूम में, वो ये है। इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो नेटिकेट में भी हमने बात की है, लेकिन ये अच्छा लिखा हुआ है तो इसे आप पढ़ सकते हैं। यू कैन read these. Now, if you have any question from email writing, the etiquettes which are attached with email writing, and what is required, and what are the do's and don'ts of a email writing, तो आप वो पूछ सकते हैं। Go ahead and ask the question. Jenny, if there is no question, then I have an assignment to assign. This will be your fourth assignment, Bete, and we are left with, I think, half an hour. So you'll do it today in this class only. आपने करना क्या है? You're going to write an email to me. मेरा email address आपके पास है? नहीं है तो मैं दोबारा Google Classroom में post कर देती हूँ. You're going to write an email. ईमेल आप किस बारे में लिखने वाले हैं वो सिचुएशन में आपकी स्क्रीन पे अभी लिख देती हूँ, बल्कि मैं पोस्ट ही कर देती हूँ। वहां से लिख के आपने वो ईमेल जो है मुझे एक्चुअली ईमेल करनी है। ठीक है, असाइनमेंट टेम्पलेट में मैं उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे ईमेल करनी है बाय कीपिंग ऑल दीज फॉर्मेलिटीज इन माइंड। नाउ लेट मी गिव यू द प्रॉम्प्ट। प्लीज चैट जीपीटी से मत कीजिएगा या एआई से मत करें, खुद करें। मिस्टेक करें पर खुद करें, ठीक है? बाद में बेशक सीखने के लिए आप एआई यूज कर लें, लेकिन उससे जनरेट करके मत भेजें। तो ये 9:30 तक मुझे मिल जानी चाहिए। मैं आपको अभी आपकी प्रॉम्प्ट देती हूँ। गिव मी अ मिनट और टू।
ओके, आपके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है बेटे, मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। दैट राइट एन ईमेल एड्रेस। अच्छा अच्छा, मैं इसको शेयर कर लूँ ताकि आपको पता हो मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। ये देखिए, दिस वन। ये ईमेल आपने मुझे अगले 20-25 मिनट्स में कर देनी, ठीक है? This is the email I'm referring to. Write an email to HOD of the Department Robotics and Artificial Intelligence. Please correct it. ये आपके ही क्या नाम है, आपका डिपार्टमेंट का नाम है। राइट एन ईमेल टू द HOD ऑफ द डिपार्टमेंट रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कोर्स, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग इनटू योर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें आपने वो सब यूज करना है जो अभी हमने इस डिस्कस किया है। ठीक है, मैं इसे प्रॉपरली एक ना असाइनमेंट क्वेश्चन शीट बनाकर आपकी गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट कर देती हूँ। तो आपने मुझे ईमेल कर देना है। मेरा ईमेल एड्रेस भी मैं यहाँ लिख देती हूँ और वहां पे भी लिख दूंगी, तो आप मुझे ईमेल कर देंगे। आई वुड हैव आस्क्ड यू टू सेंड अटैच ए, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट, बट फिर आपने कहना है हमें नहीं करना आता, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आप मुझे ईमेल कर देंगे, ठीक है? मैं आपको ईमेल भी भेज देती हूँ। ओके, सो आई हैव एडेड माय ईमेल एड्रेस एज वेल। तो इस ईमेल पे बेटे आप ईमेल भेज दें। यू हैव plenty of time, and I can see 34 students or participants, तो आपने ये भेज देना है। Any questions? If you have any questions, please go ahead and ask. Why are you doing this? This is your fourth assignment, ठीक है? मैम बस ईमेल कर दें आपको, इस पे जीसीआर पे अपलोड तो नहीं करनी? नहीं नहीं, जीसी पे नहीं करनी, जस्ट ईमेल इट टू मी। ये देखिए, ये मैंने इसको, यस, अभी कर दें, ठीक है? 20-25 मिनट्स है। गो अहेड एंड start writing your email and send it to me.
जब हम